کہ کووڈ-19 کے ایس او پی پر عمل درآمد کے لیے فوج کی خدمات دی جائیں، وہ فوج جو ہمیشہ سیلاب، زلزلہ اور آفات میں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ سندھ کے سوا تمام صوبے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ضرورت پڑنے پر پاک فوج کی خدمات لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو اس لیے ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ ایس او پیز پر کام ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز بڑھانے کی ہدایت۔ عثمان بزدار کی آکسیجن سلنڈرز کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا صورتحال خطرناک ہو رہی ہے، ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بھارت میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، پاکستان کی مدد کی پیشکش۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کو مدد کی پیشکش جذبہ خیر سگالی کے تحت کی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ریلیف سپورٹ دینے کی پیشکش کی ہے۔ پنجاب میں آکسیجن فراہمی کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ شیڈیول آپریشن 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 20% ہو گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ صوبے میں 2 ہفتے کے دوران 200 وینٹیلیٹرز لگائے گئے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا سے بگڑتی صورتحال، ایران نے پاکستان اور بھارت پر سفری پابندی عائد کر دی۔ بھارت میں پائے جانے والے کورونا وائرس برطانیہ میں پائے جانے والے وائرس سے مختلف ہے اور اس سے ایران کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جسٹس فائز کیس ایف بی آر رپورٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ مقدمے میں فریق عابد حسین منٹو نے تحریری معروضات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے۔ بابر اعظم کا ایک اور اعزاز، T20 میں تیز ترین 2000 رنز مکمل۔ بابر اعظم نے 54 میچوں میں 2000 رنز مکمل کیے۔ وراٹ کوہلی نے 56 میچز میں 2000 رنز بنائے تھے۔ اور کورونا کے وار برقرار، مزید 118 افراد جان سے گئے۔ ہلاکتیں 17,000 سے بڑھ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 5,611 نئے کورونا مریضوں کا اضافہ۔ مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ کی گئی۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم وسائل کی کمی سے تباہ نہیں ہوتی لیکن کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ پی جی آئی کے یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعظم کا پیغام، کہا پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے 25 برس قبل سفر کا آغاز کیا۔ پارٹی کے قیام کا بنیادی مقصد ملک کو کرپشن سے پاک کرنا تھا۔ قوم وسائل کی کمی سے نہیں، کرپشن سے تباہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب میں نے پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت منی لانڈرنگ عروج پر تھی۔ پی ٹی آئی کو پہلے الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی تھی، دوسرے الیکشن میں 1 سیٹ جیتی۔ ہمارے کئی لوگ ہار مان گئے لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ عمران خان نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، ایک جماعت بنائیں گے۔ جب میں نے پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت کرپشن عروج پر تھی۔ جو ہار نہیں مانتا، آخری گیند تک لڑتا ہے، وہ ہار نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اب نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آ رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ 10 سالوں میں 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ سعودی عرب، UAE اور چین نے ہماری مدد کی۔ مجھے 2.5 سال کی کارکردگی پر فخر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 7-8 ماہ سے سرپلس میں جا رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی زبردست جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گاہیں بنانے پر مجھے فخر ہے۔ پناہ گاہوں میں غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں پہلی بار سیاسی مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ سارے مافیا حکومت کے خلاف ایک ہو گئے ہیں۔ کورونا کے حوالے سے فوج کی خدمات حاصل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ کے سوا تمام صوبے ضروریات کے مطابق خدمات لیں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد اپنی ضرورت کے مطابق کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے پاک فوج کی خدمات لیں گے۔
23 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तय पाया गया था कि कोविड-19 के SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमत ली जाएं। शेख रशीद का अपने वीडियो बयान में कहना था कि इजलास में कहा गया है कि पाक फ़ौज हमेशा सैलाब, ज़लज़लों और आफात में भी अपने मुल्क और कौम के साथ खड़ी रही, उसे तमाम सूबों में ये जिम्मेदारी दी जाए। इस सिलसिले में आज वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में जरूरत के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज की खिदमत लेंगे। ताहम सूबा सिंध को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया। उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। वहाँ लाखों की तादाद में रोजाना कोरोना में मुब्तला मरीज सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि अमवात इतनी ज्यादा है कि शमशान घाटों और कब्रिस्तान में जगह खत्म हो चुकी है। ऐसे आलम में पाक फौज के जिम्मे ये काम लगाया गया है ताकि कोविड-19 कोरोना वायरस के SOPs पर सही मायनों में अमल हो सके। इस नोटिफिकेशन को आज जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की फरहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को हिदायत दी हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हो रही है। मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में फौरी इजाफा किया जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों से मुसलसल रब्ता रखा जाए और तलब और रसद को देखते हुए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सह मुल्की इजलास के जरिए अफ़गान अमन अमल की रफ्तार तेज़ करने और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के मसले पर मुसलसल हिमायत करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तुर्की के 2 रोज़ा दौरे के अख्ताम पर रवानगी से कबल अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की की हिमायत पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लिए हौसला अफजा है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल 3 मुल्की वुज़रा के इजलास में शिरकत करना भी था। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और अफ़गान हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकातें भी की। उन्होंने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और अफ़गान हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी शिरकत करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उन्होंने वीज़े का मसला और मामूली जराइम पर अफ़गानिस्तान में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी कैदियों की रहाई का मामला भी उठाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। उनका कहना था कि तब्दीली ये है कि सरमायादार दोस्तों को टैक्सों में छूट देकर आम आदमी को महंगाई के शिकंजे में कस दिया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया भर के हुक्मरान अपने अवाम के फ़ायदे सोचते हैं और इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबों पर गौर करते हैं। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ लाने वाले सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के जराइम को आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि ठंडे कमरे में बैठकर इमरान खान को उनके वालिदैन की तकलीफ का कोई एहसास नहीं होता, जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस तक अदा नहीं कर पा रहे। माउन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बायस बने। पंजाब के पसमानदा इलाकों को उनका छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमत के सफ़र पर गामज़न है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाज़ी खान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपए का तारीखी पैकेज दिया है। तौसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर्स, स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम और पनागाह का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने तौसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेस्ट हाउस का संगे बुनियाद रखा। तौसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइव स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वाहवा में रेस्क्यू सेटेलाइट सेंटर, पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाहवा क्रिकेट स्टेडियम, फैमिली पार्क, सड़कों की तामीर, वाटर सप्लाई स्कीम्स का संगे बुनियाद रख दिया है। बगला में कई किलोमीटर तवील रोड्स का इफ्तिताह भी किया गया है। बगला नादरा सेंटर रेस्क्यू बाइक्स की फरहमी, वेटरनरी डिस्पेंसरीज और दीगर मंसूबों पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
पंजाब में ऑक्सीजन फरहमी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श, ऑपरेशन 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि शेड्यूल ऑपरेशन 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20% हो गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबे में 2 हफ्ते के दौरान 200 वेंटिलेटर्स लगाए गए। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी सनत को हिदायत की है कि फैक्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई निस्बतन कम कर दी जाए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 28 अमवात हुई। यास्मीन राशिद का कहना था कि बिलावल साहब जब तनकीद करते हैं तो दुख होता है। ये कौन सा वक्त है कि हम वैक्सीन पर तनकीद करें। पंजाब सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा रहा है। लाहौर में मजीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है मई के आखिर तक 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लग जाएगी। जस्टिस फायज केस में FBI की रिपोर्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मुकदमे में फरीक आबिद हुसैन मिंटू ने तहरीरी मोरज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। जस्टिस काजी फायज इसाद नजरसानी केस में सीनियर कानूनदान आबिद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से FBI की रिपोर्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। आबिद हुसैन की जानिब से अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि FBI और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला भिजवाने का पैराग्राफ फैसले से हटाया जाए। इस्तदा की गई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के अहलखाना से मुतालिक FBI की रिपोर्ट कलअदम करार दी जाए। आबिद हुसैन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के अहलखाना की जायदादों का मामला FBI को भिजवाना गैर कानूनी है। कोरोना वायरस की शरह पंजाब में 11%, लाहौर में 17.38% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज 28,207 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,056 मरीजों का टेस्ट मुस्बत आया है। लाहौर में किए गए 8,213 कोरोना टेस्ट में से 1,428 का नतीजा मुस्बत आया है। पंजाब के अस्पतालों में 477 मरीज ICU में जेर इलाज हैं, जबकि लाहौर के अस्पतालों में 274 मरीज ICU में जेर इलाज हैं। सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 कोरोना वायरस के मरीजों का इंतकाल हुआ है, जबकि लाहौर में 28 कोरोना मरीज जाँ बहक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर में 92, जबकि लाहौर में 51 मरीज ICU में दाखिल किए गए हैं। भारत जैसी कोरोना सूरत हाल पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक देती नजर आती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन का कहना है कि भारत में ये सूरत हाल इसलिए भी हुई कि बहरान सर उठा रहा था, मगर भारत पर पैसा बनाने की धुन सवार थी। दुनिया में वैक्सीन की पैदावार में सफ़े अव्वल भारत ने अपनी ही आवाम को फरामोश कर दिया था। पानी सर से ऊंचा हो गया तो वैक्सीन की दरामद पर भारत ने पाबंदी तो लगा दी, मगर इससे अफ्रीका समेत उन ममालिक को मसाइल में झोंक दिया गया जो भारत से वैक्सीन लेने के तलबगार थे। भारत में कोरोना की हैबतनाक सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक देती दिखाई दे रही है। माहिरीन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर नरेंद्र मोदी की तरह कोरोना की पहली लहर पर फतह के शादियाने ही बजाते रहे तो भारत की तरह पाकिस्तान में भी अस्पतालों के अंदर बाहर, सड़कों, फुटपाथों, गलियों, बाजारों, खेतों और खलियानों के मनाजिर खौफनाक और दिल खराश हो सकते हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान इक़दामात और वबा के फैलाव में कामयाबियों को फतह के मेडल समझकर सीने पर सजाने और दुनिया को दिखाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को अपने ममालिक में कोरोना के नए और शदीद हमलों का सामना है। कोरोना की नई लहर बदमस्त और बेकाबू लहर ने भारत में जा बजा खौफ और मौत के मुहीब साए फैला दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म तो सड़कों पर जिंदगी सिसक सिसक कर दम तोड़ती दिखाई दे रही है। औरतें, बच्चे और बूढ़े हुकूमती बेबसी पे मातम कुना है। माहिरीन के मुताबिक भारत ने रवां साल फरवरी-मार्च में कोरोना का फैलाव रोकने का नादिर मौका गंवाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फख्र से दुनिया को बताया कि भारत कोरोना को शिकस्त दे चुका है। सऊदी अरब में तैनात होने वाले नए जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर सऊदी अरब पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को साबिक सफीर राजा अली इजाज की तरफ से नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी गई है। सऊदी अरब में तैनात होने वाले नए सफीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब पहुंचने पर साबिक सफीर राजा अली एजाज ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। साबिक सफीर और दीगर अमले की तरफ से जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी गई और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध ठहरी मीरवा में बाहर से आने वालों की आबादकारी के खिलाफ शहरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाज में अफगानी बाशिंदों और दीगर कम्युनिटीज की आबादकारी पर प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया गया है। एहतजाज करते हुए रजा हुसैन, आरफ शर, कलीम शर और दीगर हजरात का कहना था कि सिंध में बाहर से आने वालों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा, जिससे मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। जराइम की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है
कि सिंध में फौरी तौर पर गैरों की इबादी को रोका जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का शहर का दौरा। छुट्टी के रोज दुकानें खोलने पर मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। रमजान बाजार का दौरा भी किया और मौका पर दी गई सहूलियात का जायजा भी लिया गया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है, हमें इंतहाई सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे और समाजी फासले के साथ मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा का कहना था कि जो लोग SOPs पर खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सूबाई वजीर फैसल अमीन खान गंडापुर का सस्ता बाजार डेरा इस्माइल खान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने सूबाई वजीर फैसल अमीन खान को सस्ता बाजार के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आरिफुल्ला अवान ने दुकानदारों और सस्ता बाजार में आए ग्राहकों से भी खुराक की क्वालिटी से मुतालिक बात की और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड के अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि एशिया खुरोनोश की क्वालिटी पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे अजहर कुरैशी से। सूबाई वजीर फैसल अमीन खान गंडापुर का सस्ता बाजार डेरा इस्माइल खान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर आरिफुल्ला अवान और असिस्टेंट कमिश्नर नवाब समीर खान लगारी ने सूबाई वजीर फैसल अमीन खान को सस्ता बाजार से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी कि किस तरह ज़िंदगी की बुनियादी अशिया खुर्दनोश को आवाम के लिए सस्ती कीमत पर आसानी से मुहैया किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आरिफुल्ला खान अवान ने दुकानदारों और सस्ता बाजार से आए ग्राहकों से भी खुराक की क्वालिटी से मुतल्लिक बात की और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा फूड के अफसरान को हिदायत जारी की कि अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान में इंतज़ामिया की तरफ से 4 सस्ते बाज़ार कैंप किए गए हैं। अजहर कुरैशी 51 न्यूज़ डेरा इस्माइल खान। माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होने पर भी खानपुर के अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। एशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर, रोजेदार महंगाई पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इसी पर मजीद देखते हैं खानपुर महर से दिलीप कुमार की ये रिपोर्ट। रमजान अल मुबारक के बाबरकत माह में भी अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। मुर्गी, मछली, गोश्त, आटा, चीनी के साथ साथ फ्रूट और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। करते हैं अभी जैसे मुर्गी का लगा पड़ा, आपने भी देखा 400 रुपये किलो है, तो हम 400 रुपये किलो ही लेते हैं। सब्जी का भी है, सब्जी देख रहे हो इतनी महंगाई चढ़ी पड़ी और ऊपर से कोई हमको नहीं सरकार की तरफ से कोई सब्जी मिलती है नहीं कोई ऐसा। यहाँ पर जो रेट्स हम चला रहे हैं वो जाहिर सी बात है, जो इंतज़ामिया में रेट मुयसर है उनकी तरफ से उन्हीं पर हमने अमल दरामद करके हमें रेट चला रहे हैं। बाकी इंतज़ामिया की तरफ से मैं चाहता हूँ कि उनको वो एक्शन में नज़र आएँ। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है मगर यहाँ अवाम को कोई रिलीफ नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। SDM साहब और दीगर इंतज़ामिया कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर बाद में वही सेम पोजीशन है। असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक बार शहर का चक्कर लगा के कीमतों को चेक करते हैं तो दूसरे रोज ही दुकानदार डबल रेट वसूल करने लग जाते हैं। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया रोज की बुनियाद पर दुकानदारों पर नजर रखे तो महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। कोट अद्दू टाइगर फोर्स की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का दायरा दीन पनाह में शहरी के घर पर छापा। ज़िक्र की गई चीनी की बोरियां बरामद, चीनी घर के अंदर कमरे में स्टॉक की गई थी। ज़ख़ीरा अंदोज को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। कोट अद्दू के इलाका दायरा दीन पनाह में चीनी ज़हीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टाइगर फोर्स की निशानदेही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने दायरा दीन पनाह में नाइम शेख के करीबी रिश्तेदार अब्दुल मालिक शेख पकोड़े वाले के घर से ज़हीरा की गई चीनी बरामद कर ली। एक तरफ शहर भर में चीनी का बहरान पैदा हो चुका है, दूसरी तरफ चीनी 110 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि ज़हीरा अंदोजों ने चीनी ज़हीरा करके किल्लत पैदा कर रखी है। प्राइस मजिस्ट्रेट ने चीनी स्टॉक करने वाले शख्स को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में समंदरी के इलाकों में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरों के स्टॉल सजा दिए गए। आम दिनों की निस्बत रमज़ानुल मुबारक में खजूरें हमेशा से एक ख़ास अहमियत की हामिल रही हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से उस्मान सर्विस की इस रिपोर्ट में। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक को रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, इस मुबारक महीने में समंदरी में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें सजा दी जाती हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक और खजूर का साथ ना हो तो ये तो कहीं बात लिखी नहीं जाती।
इंसान की जो सारा दिन की होती है थकावट, और शाम को जब खजूर से रोज़ा खोलता है तो उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है। जैसे कि आजकल खजूरों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी कीमतें कम की जाए ताकि ये आम शहरी की पहुँच में आ सके। खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत नबवी है। सुन्नत रोज़ा ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਰ ਵੀ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜੋ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਜੂਰ ਨਾਲ रोज़ा खोलने की कासर हैगी है, तो लेकिन जो खजूर हैगी वो हमारे जिस्म को एनर्जी पहुँचाती है। वैसे तो खजूर पूरा साल खाई जाती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में खजूर एक ख़ास अहमियत की हामिल है। तिबी माहिरीन का कहना है कि खजूर खाने से पूरे दिन की तवानाई पूरी हो जाती है। खजूर में बहुत शफा होती है, इसे खाने से इंसान कई किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। शहरियों का कहना है कि वैसे तो आला क्वालिटी की खजूर पहले 100 रुपए किलो मिलती थी, अब वही खजूर 200 से 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। बस लॉकडाउन की वजह है, बाज़ार में कस्टमर नहीं है, 2 दिन बाज़ार बंद है, उसकी बहुत ज़्यादा वजह है। कस्टमर नहीं है, तीसरे दिन इतवार आता है, उसके साथ साथ वो 3 दिन ख़त्म हो जाते हैं, पीछे 4 दिन रह गए हैं, कारोबार तबाह है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, ऐसे ही खड़े हैं सुबह से, ये देख के स्टॉल लगाए हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है बाज़ार में। चीज़ के हिसाब से होता है, रेट ज़्यादा भी हो कम भी हो, इसलिए रेट ज़्यादा होता है। खजूर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और ट्रांसपोर्टेशन के किरायाजात बढ़ने की वजह से सारा बोझ अब कस्टमर पर ही पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरी करने वालों को लगाम डाली जाए, ताकि आम आदमी भी बआसानी से खजूर को खरीद कर अपने घर फैमिली में ले जाकर खा सके। रमज़ानुल मुबारक में दस्तरखान पर जितनी मज़ीद डिशेज़ हों, लेकिन खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार का अपना ही मज़ा है। और कैमरा मैन सफियान के साथ मोहम्मद उस्मान सरवर, चैनल 51 न्यूज़, फैसलाबाद। जिला नौशहर और फिरोज के रिहायशी सिकंदर अली शाह माजूर होने के बावजूद मेहनत मुशक्कत से अपने अहल खाना का पेट पाल रहा है। सिकंदर अली ने कभी अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी न बनने दिया। माजूरी के दौरान कैसे अपने रोजमर्रा के मामलात चलाता है, इसी पर जानते हैं नौशहर और फिरोज से हमारे नुमाइंदे शौकत मलिक की इस रिपोर्ट में। हम नौशहर फिरोज में अब मौजूद हैं, यहाँ डिसेबल कोटा के लिए एक नौजवान मिठानी शहर का मुकीम नौशहर फिरोज का ये मुकीम ये हमारे ऑफिस में मौजूद है, और उनसे बातचीत करेंगे कि उनका मज़ीद क्या करना है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से, तो मैं गरीब मिस्किन आदमी हूँ और मेरे को ड्यूटी वज़ीर आला सिंध से अपील कर रहा हूँ कि मेरे को रोज़गार से लगवाएं, और मैं गरीब हूँ, मेरे 4-5 बच्चे हैं, उनके रोज़गार के लिए मैं परेशान हूँ बहुत। डिसेबल कोटा की तरफ से मुझे नौकरी दिलवा दें तो मेहरबानी। मैंने मैट्रिक की है, अभी 2021 से चल रहा है, मेरी नौकरी नहीं मिली है। इंटरव्यू काफ़ी दिए हैं नवाब शाह, सखर, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपने सिकंदर अली शाह की बात सुनी, उसने यही हमें बताया कि मुझे डिसेबल कोटा के तहत ड्यूटी मिलनी चाहिए। मैं मिस्किन आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इंतहाई परेशानी में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, इसलिए मैं गवर्नमेंट सिंध को, CM सिंध को अपील करता हूँ कि मुझे डिसेबल कोटा के तहत मुझे नौकरी दी जाए। कैमरा टीम के साथ शौकत अली मलक, चैनल 51, नौशहर फिरोज। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।